அப்பா. மகாபரிசுத்தமுள்ள தகப்பனே சோதர நன்றி நன்றி கத்தாவே. ஆவியானவரே கத்தாவே, இந்த நாளில் ஆண்டவரே பரிசுத்த தேவனே கத்தாவே, எங்களை ஆண்டவரே அப்பா உயிரா வைத்திருக்கிற கிருமிக்காக முக்கடான கொடி சோத்திர 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 துதிக்கிற நன்றி செலுத்துகிற கத்தாவே. ஆவியானவரே பரிசுத்த தேவனே கத்தாவே, மகாபரிசுத்தரே இந்த நாள் ஆண்டவரே கத்தாவே, அப்பா பரிசுத்த தேவனே ஆவியானவரே அப்பா, நீ வருகை நாளா இருக்குது ஆண்டவரே. முக்கடான கொடி சோத்திர நன்றி செலுத்துகிற கத்தாவே. அப்பா இந்த நாள்லயும் ஆண்டவரே கத்தாவே, எங்களை அநேக வைத்த ஆண்டவரை பாதுகாத்தீர் ஆண்டவரே. முக்கடான கொடி சோத்திர நன்றி செலுத்துகிற கத்தாவே. அப்பா நீ செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆண்டவரே. சோத்திர சோத்திர துதிக்கிற நன்றி ஆண்டவரே. அப்ப இந்த நாள்ல இந்த கருணா வியாதி ஆண்டவரே கத்தாவே ஒன்று கூடாதபடிக்கு ஆண்டவரே கத்தாவே, உண்மைய சுதந்திரமா ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு கத்தாவே, நாங்க வீட்லயே முடங்கி ஆண்டவரே கத்தாவே உண்மை துதிக்க ஆராதிக்க ஆண்டவரே கத்தாவே, இப்படி ஒரு நாள் ஆண்டவரை வந்திருக்குது கத்தாவே. இது எல்லாம் சீக்கிரமா ஆண்டவரை சரிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த தேவனே சோதர நன்றி சந்திக்கிற கத்தாவே. ஓய் நாலு பரிசுத்த நாளுக்காக சோதர நன்றி ஆண்டவரே. மகாபரிசுத்தரே சோதர ஏற்க தயவு கருணை உள்ளவரே சோதரம் ஆண்டவரே. அப்பா பரிசுத்த தேவனே, ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவரே உன் கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து சுபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாத்தையும் ஆண்டவரே கத்தாவே பரிசுத்தப்படுத்தி தகுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எல்லாத்தையும் பாதுகாரும் ஆண்டவரே. உமக்கு சோதர நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாத்தோட தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே கத்தாவே. எல்லாத்து மேலே உன் கிருபை இருக்க வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆண்டவரே. சோத்திரம் அப்பா சோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளும் ஆண்டவரே நானும் ஆண்டவரே உயிரோட இருக்கிறோம்னா கத்தாவே, என்னோட முயற்சி என்னோட பெலனும் ஆண்டவரே, நான் செய்த நன்மையும் ஒன்றும் என்ன கத்தாவே, எல்லாம் கிருபை ஏற்கும் ஆண்டவரே. நேற்று இருந்தவங்க இன்று இல்ல கத்தாவே, ஆனாலும் ஆண்டவரே அடிமையா ஆண்டவரே கத்தாவே உயிரோட வைத்திருக்கிறீரப்பா. கண்மணி போல பாதுகாக்கிறீர் ஆண்டவரே. தேவைகளை சந்திக்கிறப்பா. கொடான கொடி சோத்திரம் நன்றி சத்திக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே பரிசுத்தரே இறக்கத்துக்கும் தயவுக்கு கொடான கொடி சோத்திரம் அப்பா. நீ செய்த ஆண்டவரே கத்தையவே நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆண்டவரே. சோதர சோதர துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே வர நாள் ஆண்டவரே கத்தாவே சீக்கிரமாக சரிப்படுத்த ஆண்டவரே. எங்களை எல்லாம் ஆண்டவரே உங்களோட ஆலயத்துல ஆண்டவரே சுதந்திரம் உன்னோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு துதிக்கிறதுக்கு கத்தாவே நீ கிருபை தர வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே சோதர சோதர துதிக்கிற கத்தாவே, ஆரம்பத்துல இருந்த கத்தாவே முடிவு வரை நீரே எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா நன்றி கத்தாவே. குற்றம் குறையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மகாபரிசுத்தரே சோதர சோதர துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிற கத்தாவே துதிக நம்ம மேல உமக்கே சேர்த்துக்கிற நாமத்தினாலே சுபம் கேள்வி ஜீவனுள்ள பிதாவே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் இந்த நாள்ல ஒரு நல்ல பாடலை பாட ஆண்டவர் கிருபை தந்ததுக்காக நான் கர்த்தருக்கு स्तोत्रम சொல்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आपके सामने एक गीत को हम गाकर प्रभु की स्तुति करें. और இந்த பாடல் கர்த்தர் உந்தன் முன்னே போவார் மனமே நீ கலங்காது. நம்ம அனைவரும் கலங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த தேசத்துல கொரோனா இந்த வைரஸ் ரொம்பவே பரவி கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஆண்டவரோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம எதற்காகவும் கலங்க வேண்டாம். ஏன்னா கர்த்தர் நமக்கு முன்பே போய் நமக்கு வெற்றியை தருவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த பாடலை பாடி நம்ம ஆண்டவரை துதிப்போம். கர்த்தர் உந்தன் முன்னே போவார்.
வேண்டியதை தந்திடுவார், வெட்கப்பட விட மாட்டார். கர்த்தருங்கள் முன்னே போவார், கர்த்தருங்கள் முன்னே போவார். ஓசன்னா, 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 ஓசன்னா. உன்னத தேவனுக்கே ஓசன்னா, 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 ஓசன்னா.
ஆண்டவரை மட்டுமாய் பாதுகாத்த இந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். துதிகள் மத்தியில் வாசம் செய்கிற எங்கள் தூயாதி தூயவரே, உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உன்னதமானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உயர்ந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அல்வா உமைக்கு ஆனவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆதி மந்தம் மானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்கள் கண்மலையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், எங்கள் ரத்த கோட்டையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், எங்கள் துர்கமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, இம்மட்டுமா எங்களின் தேவன் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே உயிரோடு வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, நீ செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம். நீர் பெரியவர், பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரை நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாய் செய்கிற என் தேவனையுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, எங்களுடைய தலைமுடிகள் எல்லாம் எண்ணி வைத்திருக்கிறவரே உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. தகப்பன், எங்களுடைய தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகும் முன்னே எங்களை தெரிந்து கொண்டீரே உமக்கு சோத்திரம். எங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரையுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் உடைய உள்ளங்கையில வரைந்து வைத்திருக்கிற தேவனையுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் தகப்பனையுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, ராஜாவுமே சோத்தரிக்கிறோமே சோத்தரிக்கிறோம் ஐயா. இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று கர்த்தாவே நீர் எங்களை துதிப்பதற்காக எங்களை உண்டாக்கினீரே உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம். எங்கேயோ கிடந்தோம் கர்த்தாவே, எப்படியோ வாழ்ந்தோம் ஆண்டவரே. என் தேவன் எங்களை அனுப்பிச்சா ஆண்டவரே, பெயர் சொல்லி அழைத்து கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆண்டவரே எங்களுடைய பாவங்களை கழுவி உங்களுடைய ரத்தத்தால் ஆண்டவரே எங்களை கழுவி எடுத்தீரே உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. ராஜாதி ராஜாவே உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம். எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற எங்கள் தகப்பனே, ஓ ராஜாவை சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ராஜாவை சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உலகத்தில் எத்தனையோ மக்கள் ஆண்டவரை மரித்து போயிருந்தாலும் என் தேவன் எங்களை ஆண்டவரை உயிரோடு வைத்திருக்கிறீரே. உங்களுடைய சுத்த கிருபைக்காக உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பலவீனத்தில் உங்களுடைய கிருபை தாங்கினபடியால் உமக்கு சோத்திரம். எங்களுடைய தாழ்மையில எங்களை நினைத்து பார்த்தீரே உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. ஆண்டவரே உமக்கு சோத்திரம் சோத்திரம். ஒன்றுமில்லாத நேரத்திலே உங்களுடைய கிருபைகளை தாங்கினபடியால் உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடுமே சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு சோத்திரம் சோத்திரம். உலகம் எங்களை வெறுக்கலாம் தகப்பனே, ஓ எங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் எங்களை வெறுக்கலாம் ஆண்டவரே. ஆனால் தேவன் எங்களை சேர்த்துக் கொள்கிற தேவனே ஆண்டவரே. உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. எத்தனை நன்றி சொன்னாலும் போதாது ஆண்டவரே. எங்கள் சபையை பாதுகாத்திர உமக்கு நன்றி. என்னுடைய பொருட்களை எல்லாம் பாதுகாத்திர உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. என்னுடைய நோய்களை எல்லாம் உடைய ரத்தத்தால் குணமாக்கினதே உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றியோடுமே சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் சபையார் யாவரும் உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. நீர் பெருக வேண்டும் ஆண்டவரே, நாங்கள் சிறுக வேண்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே ஆண்டவரே உமக்கு சோத்திரம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. சமாதானம் கொடுக்கிறவரே உமக்கு சோத்திரம், சந்தோஷம் கொடுக்கிறவரே உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. ஒரு நாள் எங்களை மறவாதவரே உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம். எங்கள் கண்மலையான தேவனே உம்மை சோத்தரிக்கிறோமே துதிக்கிறோம். உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைத்திருக்கிற தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. உடைய வசனத்தின் மூலமா எங்களோடு கூட பேசுகிறவரே உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. ஓ ராஜா, ஒவ்வொரு நாள் எங்களோடு கூட இடைபடுகிற தேவனே உமக்கு சோத்திரம் ஐயா. ஆண்டவரே உமக்கு சோத்திரம். ஆபிரகாமின் தேவனே உமக்கு சோத்திரம், ஈசாக்கின் தேவனே உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. ஓ யாக்கோபின் தேவனே உமக்கு சோத்திரம் ஐயா. தானியேலின் தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. எங்கள் தேவனே உம்மை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ராஜா, நாங்கள் கண்ணீரற்ற வாழ்க்கையில கர்த்தாவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கண்ணீரின் மத்தியில வாழும்போது கர்த்தார் ஆண்டவரே, என்னுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவரே உம்மை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். என்னுடைய கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவனே உம்மை சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. எத்தனை அருமையான தெய்வத்தை நாங்கள் கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள், நாங்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் கர்த்தாவே ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய கால்கள் இடராத படிக்க தகப்பனே உங்களுடைய தூதர்களை கொண்டு எங்களை பாதுகாக்கிறீரப்பா, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய தலையின் முடிகளை எல்லாம் எண்ணி வைத்திருக்கிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்கள் எலும்புகளை எல்லாம் கர்த்தர் ஆண்டவரே நினைவுள்ளதாய் ஆக்குகிறவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த மாதத்தில் இந்த 4 மாத காதங்கள் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இங்க இருந்து எங்களை வழி நடத்திராச்சா. எங்களை உயிரோடு வைத்திருக்கிற சுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நீர் பொறுப்படுத்தி நடத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நீரே பெரியவர் ராஜா. பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கொரோனா வியாதிக்காக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எத்தனை மக்கள் ஆண்டவரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கர்த்தாவே ஆண்டவர், இந்த பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேஷண்ட் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவரை சீக்கிரமாய் குணமடைந்து வீட்டுக்கு செல்ல கர்த்தர் கிருபை தரும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது மாத்திரமல்லப்பா ஆண்டவரே ராஜா, ஆண்டவரை பணிபுரிகிற அத்தனை டாக்டர்மார்கள் நாங்கள் செபிக்கிறோம், சிஸ்டர்மார்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஐயா. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா மினிஸ்டர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தன் உயிரை பணயம் வைத்து ராஜா ஆண்டவரை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. சீக்கிரமா எங்களுடைய தேசத்திலே தகப்பனே இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறி கர்த்தாவே நார்மல் நிலைக்கு வர கர்த்தர் கொண்டு வர முடியாது செபிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றும் கருத்துல நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். துதி கன மகிமையா உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே.
धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु इस सच्चे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आज का दिन आपने दिखाया प्रभु, 7वें दिन में हमें लेकर आए प्रभु आपके विश्राम दिन में राजा। और प्रभु हम भाग्यशाली है कि इस विश्राम दिन तक हमें आपने जीवित रखा है और आगे भी रखोगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। एल शडाई एलोहीम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आदि और अंत आपका धन्यवाद करते हैं राजा। महामारी से बचाने वाले मेरे प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा। डॉक्टरों से बढ़कर डॉक्टर आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु आपकी लहू से चंगाई पाए हुए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुमूल्य लहू के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। अपने पंखों तले हमें ढक के रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। शैतान की हर एक शक्ति पर जय दिलाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक परीक्षाओं में जय दिलाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। अपने हमारे माता के गर्भ में आपने हमें रचना की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु मेरे प्यारे पिता आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। हमारे रोगों के बिस्तर से हमें उठ खड़ा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे कमजोरियों में प्रभु हमें बल देने वाले राजा आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन निराशा में जब था प्रभु आपने नई आशा और नई उमंग हमारे मनों में उत्पन्न किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु इस अच्छे समय के लिए हम खासकर धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु खासकर हो सकता है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे आराधनालय में ना हो राजा, लेकिन हमारी सारी आत्माएं एक होकर प्रार्थना कर रही है और उसका उत्तर आप दे रहे हो। हमारी स्तुति के बलियों को आपने सुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस विश्वास के साथ भी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जल्द से जल्द हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे सारे विश्वासियों को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। हमारे देश में जल्द से जल्द एक बेदारी को लेकर आने के लिए, चंगाइयों को लेकर आने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। ओ परिवार को अच्छा देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दुर्घटना से बचा के रखने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कष्टों से बचा के रखने वाले प्रभु आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। यूहन्ना 21 चैप्टर 1 से लेके 13 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के कानो नगर का नतलएम और जबूती के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उसने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा,
जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शैमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछलियां भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। आपको जय मसीह की। प्रभु के नाम से, मेरे यहोवा के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूं हमारी चर्च ऑफ डिलीवरेंस की इस ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु आपको आशीष करे। आज मैं आपसे भजन संहिता 23 शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, जिसमें सब्जेक्ट है पहला, यहोवा मेरा चरवाहा। आप अपनी बाइबल ओपन रखिएगा, आप देखिएगा, इसको रीड कीजिएगा आप भी। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये पहला वचन है। यानी दाऊद का इतना विश्वास है, इतना पक्का विश्वास है, सच्चा विश्वास है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास यहोवा पे है, आप उस पे विश्वास करते हैं सच्चे मन से, तो कोई घटी नहीं होगी। अगर आप उसको अपना मेन सोर्स मानते कि हाँ वो ही आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है, तो सच में कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहोवा के पास सब कुछ है, भरपूरी से। जिस चीज़ के लिए चाहिए वो चीज़ प्रदान करने वाला यहोवा है। तो मैं ये वचन आपके साथ बांट रहा हूँ, जिसमें वचन कहता है दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तीसरा कहता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो आपको सुखदायी जल के झरने के पास, यानी कि आपको दुख का वो एहसास ही नहीं होने देगा। क्योंकि वचन कहता है, यहोवा का आनंद मेरा गढ़ है। तो यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानिए, वो आपको कोई घटी नहीं रहने देगा। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के बच्चों को कोई घटी नहीं होगी, ये वचन कहता है। आज आपको पता है ऐसी सिचुएशन है, हम कोरोना वायरस, आपने सुना होगा, ये महामारी फैली हुई है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमको वचन दिया है। भजन संहिता 91 वो कहता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो वो आपको बहेलिये के जाल से, महामारी से बचाएगा, महारोग से बचाएगा। वो आपको कैंसर से बचाने की हिम्मत रखता है, वो आपको टीबी से बचाने की हिम्मत रखता है, वो आपको किसी भी प्रकार का रोग हो उससे चंगाई देने की हिम्मत रखता है हमारा परमेश्वर। उसका एक नाम है, वो बहुत ही अच्छा नाम है, यहोवा राफा। यहोवा जो चंगाई देता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। उसने अपने ऊपर इतने कोड़े खाए, उस कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। यानी दुनिया में जितनी भी डिसीज है, कोई भी रोग हो, उस प्रभु ने अपने ऊपर वो कोड़े खाने से उस सारी बीमारियों का इलाज हमें दे दिया। उसके पवित्र लहू द्वारा हम चंगे हो गए। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, कि यहोवा आपका चरवाहा है। लेकिन आज हम कभी कभी, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, हम एक चिंता होती है सबको, हाँ सबके दिमाग में एक चिंता होती है, एक बात होती है, टेंशन होती है कि क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। यहोवा जानता है, वो अपने समय पे सब कुछ ठीक कर देगा। टेढ़े रास्तों को सीधे करने वाला परमेश्वर है, उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है, समतल करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है। लेकिन कभी कभी हम अपनी चिंताओं को बढ़ा लेते हैं। चिंता को बढ़ाने से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब है वरी, यानी ये एक
जिसमें वरी बहुत ही एक हाई यानी बड़े फ़ॉन्ट में ये, और ये गॉड छोटा लिखा हुआ है। यानी हम अपनी चिंताओं को बड़ी बनाते हैं, अपने प्रभु को छोटा कर देते हैं। सारी टेंशन हम अपने ऊपर ले लेते हैं, सब कुछ हमारे माइंड में ले लेते हैं। हम खुद सोचते हैं सोल्यूशन, हमें खुद सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। तो मेरे परमेश्वर से सब कुछ संभव है, लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को छोटा बनाते हो और अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाते हो, यानी कि अपने परमेश्वर को बड़ा बनाते हो और चिंताओं को छोटा करते हो, तब यहोवा आपकी जिंदगी में कार्य करता है, क्योंकि आपने अपनी सारी बातें उसके हाथों में रख दी है कि परमेश्वर आपके हाथों में है। जब उस बच्चे ने 5 रोटी दी थी और मछली दी थी, तो हमारे परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को इतने सारे लोग खिलाया था, 5000 लोग खिला दिया था उस परमेश्वर ने। तो मेरा परमेश्वर एक ओवरफ्लो वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है, राई का दाना इतना सा लेकिन क्वालिटी वाला, तो आपका विश्वास उस पर इतना सा हुआ ना, पूरा सच्चे मन वाला, तो यहोवा आपको कोई घटी नहीं रहने देगा। भजन संहिता 23 भी कहती है, दाऊद यही कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। तो उसका मतलब यह है कि उसको इतनी आशीष मिल रही है कि आप वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकता है, बना है वो। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, जब आपका प्याला उमड़ रहा है, नहीं, जब आपके पास आशीष आएगी प्रभु की, तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनोगे। ये परमेश्वर हमारा खुदा दूसरों को भी दिखाता है कि इसकी जिंदगी में कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। जब दूसरे लोग देख के कहेंगे आपको, हाँ सच में इसकी जिंदगी में वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो आशीष देने वाला खुदा है, जो मन्नतें पूरी करने वाला खुदा है। लेकिन उसको सच्चे मन से ढूंढो। जब आप उसे ढूंढोगे पूरे मन से, तो उसे पाओगे भी। तो हमारा चरवाहा सिर्फ परमेश्वर है और कोई हमारा चरवाहा नहीं है। सब कुछ है उसके पास। उसने बोला, मैं जो हूं सो हूं। आपको किसी भी स्थिति में, कोई भी सिचुएशन में हो, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो परमेश्वर का वचन याद रखिए, वो बोलता है मैं हूं। आप सवेरे जब उठेंगे, मंडे मॉर्निंग में, आपको उठते ही बोलना है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। सच में कोई घटी नहीं होगी आपको। आज बाहर जो रोड पे लोग रहते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि हमारा सुबह का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रात का खाना या दोपहर का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे, एक बहुत ही अच्छी बात है, जब इजरायली मरुस्थल में थे, वहां पे बटेर आई थी। इजरायलियों ने मांगा था कि खाने के लिए हमें चाहिए, दे वर आस्किंग फॉर चिकन। तो मूसा ने प्रार्थना करी, तब देखिए बटेर उड़ के आई थी इजरायलियों के पास, और वो बटेर पूरे मरुस्थल में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ समुद्र के किनारे ही आपको बटेर मिलेंगी। तो मेरे भाइयों, जब आप खुदा से कुछ मांगते हो, आपका परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, उसको पता है कि आपकी चिंता क्या है, क्या जरूरत है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, जिस तरह इजरायलियों के पास जब वो हवा का रुख बदला, जब सब बटेर उड़ के आ गए उनके पास एक भोजन के रूप में, तो जो आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपकी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, आपके बाइबल पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो चीजें यीशु मसीह के नाम में आपके पास आएंगी। परमेश्वर हवाओं का रुख बदलना जानता है। तो मैं यही वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा को सच में अपना चरवाहा मान के चलिए। इस दौर में हो सकता है विश्वास थोड़ा डगमगा जाता हो, लेकिन घबराना नहीं है, उसी पे भरोसा रखना है। वो इन चीज़ों से निकाल के आपको लाएगा, वो पुनः स्थापित करेगा। वचन कहता है, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। वो आपको फिर से पुनः स्थापित करेगा, वो ब्लेस करेगा, वो आशीष करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि आपके जो आने वाले दिन हैं, वो पहले दिन के मुताबिक, यानी बीते हुए दिन से भी बेहतर होंगे। तो सच में आपके आने वाला जो समय है, वो आशीषमय होगा, अनुग्रह से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा। जो यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है, वो देने वाला खुदा है। उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। परमेश्वर से यही बोलते रहिए, निश्चय भलाई करुणा मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं परमेश्वर के धाम में हमेशा वास करने पाऊंगा। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है, उस पर विश्वास रखिए।
इस पर भरोसा रखिए, यही समय अपने विश्वास को दिखाने का। इस टेस्ट में आप पास हो जाओगे तो आने वाले समय में आपकी टेस्टिमनी आएगी। यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे कहता हूँ, यहोवा पे भरोसा रखोगे, वो आपको, जितनी बड़ा युद्ध होता है उतनी बड़ी जीत होती है। तो जितना बड़ा विश्वास होगा, जितनी बड़ी प्रार्थना होगी, उतनी बड़ी ब्लेसिंग आएगी। मैं लास्ट लाइन आपसे कहना चाहता हूँ कि स्तुति करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं, शिकायत करने वाला रहे वहीं का वहीं। स्तुति करिए अपने परमेश्वर की, उससे लिपटे रहिए, उसका भय मानिए, उसकी आज्ञाओं को, नियम को आपके घर की चौखट पे, आपके पलकों के बीच में टीके के समान रखिए। यही यहोवा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पूरी पृथ्वी को इस कोरोना वायरस से छुटकारा दिलाएगा। वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जो बीमार है उन्हें चंगा करेगा, जो नहीं रहे उन परिवार को ताकत बल देगा, और जो हम भले चंगे हैं हम उसकी स्तुति करते रहेंगे और इस कोरोना वायरस को जल्दी खत्म होते हुए देखेंगे। और यहोवा आपकी सारी कमी घटी को पूरी करेगा, यीशु मसीह के नाम। जय मसीह की। आप सबको मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपसे बात करने में मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आप सबको पता है, एक महामारी हमारे देश में फैली हुई है, जैसे कि वो कोरोना, और इस महामारी में काफी लोग मर चुके हैं। और आज आप और मैं जिंदा हैं और जीवित हैं तो वो सिर्फ प्रभु की दया और कृपा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ एक गीत आपके साथ गाऊं मिलकर, जो कि ये गाना है, आप सबको पता है, धन्यवाद की भेंट हम उसको चढ़ाएंगे और धन्यवाद का ये गाना हम गीत गाएंगे। स्तुति गाऊंगा, हे
सेवक